میں ہوں ابلیس، میں ہوں ابلیس، میں ہوں ابلیس، دھتکارا ہوا نکالا ہوا، تکبر کرنے والا اور زبان سے پھرنے والا، عرش سے زمین پر پٹخ دیا گیا، پستی میں دھس دیا گیا۔ اب مجھے اس کے خاتمے تک مہلت دی گئی ہے۔ پھر سن لے مجھے اپنی قسم ہے اے آدم ابو بشر، زمین پر میری جتنی بھی مہلت ہے، آرام سے نہیں بیٹھے گا یہ ابلیس۔ نیکی سے پہلے فرزندان آدم کو فریب دے کر گناہوں میں جکڑ دوں گا، انہیں جہالت میں گمراہ کر دوں گا، جہالت میں، شیریں جہالت میں۔ اے میرے عظیم اور مہربان خدا، نمرود کے بعد تیرا ہی بلند مقام ہے، تیرا ہی۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے اس بت خانے میں؟ بابل کی سرزمین نمرود ابن کوش کی فرمانروائی کا سب سے عظیم مرکز تھی، جو اس دور کے چند بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس بڑے شہر کا نام اور وجود حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 4 صدی پہلے صفحہ تاریخ سے مکمل محو ہو کر زمیں بوس ہو گیا تھا۔ اس دور کے لوگ چھوٹے آشیانوں کی پوجا پاٹ کے سخت مخالف ہو گئے تھے اور صرف نمرود کو ہی خداؤں کا خدا سمجھتے تھے۔ بابلیان، او بابلیان، تمہیں قسم دیتا ہوں خداؤں کے خدا نمرود کی، میرے پاس بھی ایک ایسا خدا تھا جس کی میں جھاڑ پونچھ میں مصروف تھا۔ میں اس پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا کہ غبار جھاڑتے ہوئے اچانک ایک ضرب لگی اور میں ابد تک لعنتی بن گیا۔ راستہ دو، ہٹ جاؤ راستے سے، خداؤں کا سندگر، آزر بت تراش، اس مسئلے کا علاج آ گیا ہے، چھوڑ دو راستہ۔ جب بیابانی پتھر سے بت تراشا جاتا ہے اس سخی اور ماہر بت تراش رہنما کے ہاتھوں سے، تو بابل کے بڑے بادیوں کے مقدر بدل جاتے ہیں، کالے بادل چھٹ جائیں اور بابل کی فضا نور سے منور ہو جائے۔ کیونکہ آزر قلم تراشی کریں گے ان خداؤں کے خدا کے پیکر پر، اسی وجہ سے تو تمام خداؤں کے خدا نمرود انہیں چاہتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ میرے ہاتھوں بنایا ہوا نہیں یہ بت، یہ بت تراش شبیس کا کام ہے۔ تو ایک خوش گفتار اور خوش کلام شاعر ہے، ماہر بت تراشوں نے تیرے کلام کے ذریعے بھی خدا بنائے ہیں، تیرے کلام کی شان و شوکت کے مطابق۔ ہٹ جاؤ، جھک جاؤ، راستہ چھوڑو، جھکو، احترام کرو۔ دیدے پھڑ کر اس نمرود کو دیکھ رہا ہے جس نے میری قدر کو نہ جانا،
اوبیس! اس نے آزر کے بتوں کو زیادہ اہمیت دی، اسے عزیز جانا۔ نمرودیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کن کے ساتھ؟ ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا۔ کس کو؟ حالانکہ وہ آزر بت تراش کا بھتیجا ہے۔ ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا، لے گئے اسے بابا، وہ لے گئے اسے۔ جو بھی سجدہ نہ کرے سزا پاتا ہے۔ لوط، تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ گرفتار کر کے لے گئے اسے۔ ابراہیم، اس اندھیری کوٹری کی فصیلیں زیادہ آرام دہ تھی چچا کے گھر سے۔ میں کیوں سجدہ کروں اس بندے کا جو مجھ جیسا ہے، ایک ہی ہڈی اور گوشت کا؟ خاموش رہو ابراہیم، تمہاری زبان کے تلخ نشتر نے ان نمرودیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس کے بعد آزر کا کیا دھرا بھی کام نہیں آئے گا۔ آزر، کیوں تو نے میرے بیٹے سے بت تراشی کروائی؟ اس روز جب تو نے ایک غنی بیٹے کے راز سے مجھے آگاہ کیا، میں نے اسے اس لیے کام پر لگایا کیونکہ میرے تمام بیٹوں میں سے اس میں تراش کاری کا ہنر موجود تھا۔ کیا ہنر ہے! واہ، کتنی خوبصورت تراش کاری کی ہے! کاش تیرا باپ تارک زندہ ہوتا اور دیکھتا کہ کتنی ظرافت سے تراشا ہے۔ تو میرے بیٹوں سے تیز تراش کار ہے۔ تراشتے رہو، تراشتے رہو، تراشتے رہو کہ تو ہی میرا جانشین ہوگا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ تمہارے کس کام آتا ہے؟ پوچھتے ہیں اس کو۔
पत्थर को? उसी की पूजा करते हो जिसे अपने हाथों से तराशते हो? तू आजर का भतीजा और सहारा है, चचा के साथ। अब तू तराशेगा नहीं, बेचेगा। बाबिल के बाजार में बेचेगा, खुदाओं का बाजार लगाएगा तू। बुत ले लो, रंगारंग तराशा हुआ, सस्ते और महंगे, ना किसी के लिए नुकसानदेह हैं और ना मुफीद। ले लो, बुत ले लो, सस्ते भी हैं और महंगे भी, मुझसे खरीदें, क्योंकि आपके लिए ना मुजिर हैं ना मुफीद, सस्ते और महंगे। आए, आए खरीद लें, आए मुझसे खरीदें, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना फायदा। आए सौदा कर लें। मैं तुम पर हक के बिदरी रखता हूँ, मोहब्बत से पाला है, चाह से पाला है तुम्हें मैंने। सोचा था गनी हो जाओगे और इस खुदसाजी की सनत के सरवर और सालार बनोगे, न कि इसकी आफत और बला। इन पत्थरों से तराशते हो इन्हें तराशो, इन्हें तराशो। अपनी ज़राफत, होशियारी और खूबसूरती से इन्हें तराशो। अपने गनी हाथों से मैं चाहता हूं इन सख्त पत्थरों को मोम की तरह नरम और मुलायम बना दो। अपने इन हाथों से तराशो। ये हाथ किसने बनाए हैं? मैंने तुझे महंगे दामों के एवज बाजार से खरीदा है, फिर भी मैं तुझ पर कादिर हूं। मैं हूं तेरा खुदा, तुझे झुकना पड़ेगा। चल झुक। तू बाबलियान के लिए खुदा है, मेरा तो खुदा नहीं है। झुक जा, चल झुक जा। नमरूद मुअज़्ज़म का तख्त। ये तख्त नहीं है, जहालत है। नमरूद ऐसे तख्त का सहारा नहीं लेता जो जहालत का निशान। तू ज़हीन है, लेकिन बाबलियान की जहालत जानने की हद तक, उतने अरसे तक जब तक ये लोग अपनी जहालत में बाकी हैं। खुदाई हुकूमत से भी आगे हम इनकी जहालत पर हुकूमत कर सकते हैं। अपने बंदों की जहालत पर काबू रखो। आजाद हो गए। हाँ, नमरूद के जुल्म का असीर आज़र की मदाखलत पर आजाद हुआ। डरते नहीं? मुमकिन है कि वो नमरूद का जासूस हो।
नमरूद के जासूस मेहरबान नहीं होते सारा। तुम्हें कैसे पता सारा की मेहरबानी? नमरूदी कमजोर लोगों को नहीं पकड़ते। ये शाहकार आज़र है, मेरे ये हाथ मोइज़ागर हैं। नमरूद अगर तुझे एक बार देख ले तो अपनी सारी खुदाई भूल जाए। चमका दो इसे। लूत क्या हुआ? कुछ दिनों से पहाड़ों पर गया हुआ है इबादत करने के लिए। इबादत इबादत इबादत। इब्राहिम मेरा भतीजा है लेकिन मुझसे नहीं। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, शायद लौट गया हूं। तू नमरूद की आंखें हैं बर्बाद। आज़र के उस बुत को नमरूद की दरगाह में मकलूब कर दोगे, ना कि महफूज। तूने वादा किया था कि आज़र के हाथों बनाया हुआ वो बड़ा बुत हरगिज़ बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। वो बुत जो मैंने बनाया था उसे नमरूद की नजर में बढ़ाओगे। बहुत मुश्किल है ओबैस। उस दिन जब तू नमरूद के दरबार से निकाला गया था, आज़र को खुदाओं की सनतगरी का तमगा बाबिल के फरमा रवा से मिल गया था, और यही हकीकत भी है ओबैस। नहीं नहीं, जान लीजिए, वो चीज जो मैंने उस दिन देखी थी अगर नमरूद पर जाहिर कर दूं तो बड़े बुरे दिन तुझ पर आ जाएंगे। मुझे धमकी मत दे ओबैस। अगर तूने जबान खोली जिंदा दरगूं कर दूंगा, ताकि आइंदा किसी भी चीज को न देख सके तू। इस बात का भी सोच रखा है मैंने। तेरे राज एक अमानतदार को बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि उस दिन जब मैं किसी के हाथों कत्ल हो जाऊं, नमरूद तक इस बात को पहुंचा देना। नहीं भूल सकता वो दिन जब मैं शिकार के लिए जंगल की तरफ गया था। पता है दरख्तों की ओट से मैंने क्या देखा? एक घोड़ा ऊंचे कद का। आज तो बोल। ठीक है, आज़र का बुत बाबिल के बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। अब जाओ बैस, यहां से चला जा। बहुत अच्छा बर्बाद, बहुत अच्छा। बर्बाक, ओबैस बुत्तराज हमारा राज नमरूद पर फाश कर देगा अगर उसके असल रकीब आज़र बुत्तराज को मैदान बदल ना किया हमने। अगर कहो तो उसे भी मार दे और नमरूद को भी। ऐ मेरे अल्लाह, इन लोगों के अमालों पर गौर किया? देखा तूने ये सब बुत परस्त हैं, भटके हुए। सुन रहा है? तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है, तुम हमारी मदद करो, हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम ऐ चमकदार रस्साम खुदाई करती हैं इन बंदों पर। ऐ दश्तो दरिया पर फैले हुए आसमानी सितारों, हमारे मुस्तकबिल के मालिक, हमारी जान और माल के मालिक तुम ही हो। हमारे मुल्क को मालिक और हमारे जहां के मालिक। हम सब बंदों की फरियाद सुनो
हमारी सरजमीन को किसकी परस्तिश करते हो? हम तुम्हारे लुत्फ और करम के मोहताज हैं। तेरे वजूद से हमें तकलीफ हो रही है, जा चला जा यहाँ से। कौन से अजसाम की परस्तिश कर रहे हो? हालांकि इस दोपहर के वक्त आसमान पर कोई सितारा नहीं। मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसका जलाल इनसे भी मुनव्वर है। हम तुम्हारे लुत्फ और करम के मोहताज हैं। ऐ बड़े सितारों, तुम्हारे हाथ में हमारी तकदीर है। हमारी सरजमीन को बरकत अता करो। हम तुम्हारे लुत्फ। ऐ ज़ोहरा, मेरे खुदा पर कौन सी बला आ गई? क्यों गुरूब हो गया? क्यों महताब की रोशनी इस पर हावी हो गई? नहीं, मैं अब ज़ोहरा की इबादत नहीं करूंगा। अब चांद है मेरा खुदा, इससे भी अजीम तर और नूरानी। क्या चाहते हो इन अजसाम परस बंदों से? जा यहाँ से चला जा, दूर हो जा। मैं भी इन्हीं बंदों में से हूँ। गुरूब हो गया, चांद भी गुरूब हो गया। अब ये जलता सूरज इन बंदों पर हाकिम है। दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा इन बंदों से। सूरज भी ज़ोहरा और चांद की तरह गुरूब हो गया। ये कैसे खुदा हैं जो गुरूब हो जाते हैं? मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो कभी फना नहीं होता। मेरे खुदा आसमानी अजसाम नहीं, खुदा यानी हमेशा बाकी, ना के फानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सालों तक बुत परस्तों को हिदायत दी। आग के खुदा की तरफ ले जाऊंगा इन्हें। वो सितारों की परस्तिश करते थे, आसमानी अजसाम की एक मलून के कहने पर। सुनो, मैं तेरी कुर्बानी करता हूँ खुदाओं की राह में, इसलिए कि इस बच्चे के पैर से खुदाई बुत टूट गया। ये वहां से जा रहा था कि इसका पैर बड़े बुत से टकरा गया और वो वहीं बिखर गया। ये कैसा खुदा है जो अपने आप को भी संभाल नहीं पाता और एक बच्चा उसे यूं खाड़ दे? पता नहीं कि अब मेरा नया खुदा ये टूटा हुआ खुदा है या वो जिसे मेरे बेटे ने तोड़ डाला। आखिरकार तमाम मखलूक तुझे ही आलम का मुदब्बिर जानती है। कोई शक नहीं, तू ही हस्ती का मुदब्बिर है। सब जगह हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, हर जगह तेरा वजूद। क्यों इनकी जहालतों को वाज़ेह नहीं कर देता? मैं जानता हूं तू है, तू मौजूद है, तू कादिर मुतलक है। फिर कुछ बोल, कोई निशानी दिखा। मेरी बात सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी सदा पहुंच रही है। जवाब नहीं दिया इब्राहिम, मेरा साथ दे। मेरी मदद कर कि इसका साथ ना दूं। मैं जिब्राइल हूं, परवरदिगार का पैगाम अल्लाह ने तुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया है ताकि अक़वाम बशर तक उसका पैगाम पहुंचा सके। वो जो शिर्क करते हैं
और इनकार करते हैं परवरदिगार की फरमारवाई और वजूद में लाने वाली रबूबियत का। वो गुमराही की राह में भटक गए। इस आवाज के जरिए ऐ इब्राहिम, खुदा के पैगंबर, तुझे हम सलाम भेजते हैं। अगर आजर का बुत यहाँ आया तो नमरूद को सब कुछ बता दूंगा। मैं खुदाए वाहिद की तरफ से भेजा गया हूं तुम पर ए कौम बाबिल। इब्राहिम, कौन सी सोच तुम्हारे जहन में है? ये मुनाफा बख्श दिमाग, ठंड से मुंजमद जहन चाहते हो? मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, आओजारी करता हूं। मेरा सकून तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं। पैगंबर, किस चीज ने तुम्हें इन खुदाओं के खिलाफ कर दिया है? वो सुनहरे दिन जिस घड़ी के आने का हम दिन रात इंतजार करते रहे, यूं खराब न करो। आज़र, क्या तुम जानते हो ये जमादात जो बुत हैं और जिन्हें तुम खुदा कहते हो, क्या तुम्हारे चाहने पर तुम्हारा कलाम सुनते हैं? क्या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान देते हैं? हमने अपने बुजुर्गों को इन बुतों की परस्तिश करते पाया है। अगरचे ये बेअसर है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हीं की इबादत करेंगे। मैं इबादत करता हूं उस खुदा की जिसने मुझे पैदा किया, और वो हिदायत करता है अपने लुत्फ करम से। वही खुदा जो अपनी करामात से जब मुझे भूख लगे तो ग़िज़ा दे, जब प्यास लगे तो सैराब कर दे, जब बीमार हो जाऊं तो शिफा दे। वो खुदा जो मुझे मौत देगा और फिर वो जिंदा करेगा आखिरत की अबदी जिंदगी के लिए। और वही खुदा जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श दे, और वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे तन्हा छोड़ दो। अगर हो सके तो बाबिल से दूर हो जाओ, चले जाओ। बर्बाद ने खुदाओं के बादशाह के साथ खयानत की है। झूठ है, झूठ है। झूठ है। ये आदमी सरापा झूठ है, रियाकार और फरेबकार। निकाल दो इसे दरबार से, फितनागरी करने आया है। दूर हो जाए यहां से ऐ मलून। चला जाता हूं वजीर मुहतरम, लेकिन उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बर्बाद की खयानत का राज बाबिल के खुदाओं के बादशाह पर फाश न कर दूं और जंगल के वाक़े से उसे आगाह न कर। बाबिल के खुदाओं के बादशाह की कसम मार दूंगा तुझे। ले जाओ इसे। नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मुझे ये रात कहने का मौका जरूर दे।